السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میں علی رضا میریلینڈ ہائی اسکول سے آپ سے مخاطب ہوں، آپ کا مطالعہ پاکستان کا استاد۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو ہمارا عنوان ہے، وہ 1962 کے آئین کے اہم موضوعات ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ 1962 کے آئین کی بات ہو رہی ہے، تو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ چیک کر لیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، ہم نے پریویس لیکچر کے اندر پڑھا تھا قرارداد مقاصد۔ تو قرارداد مقاصد جو تھی وہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان نے 12 مارچ 1949 کو آئین ساز اسمبلی سے منظور کروائی تھی۔ اس قرارداد مقاصد کا مقصد یہ تھا کہ اس کے پوائنٹس کی روشنی میں ہم نے اپنا قانون تیار کرنا تھا۔ کوئی ایسا، کیونکہ پاکستان جب بنا تھا اس وقت پاکستان کے اندر کوئی بھی قانون موجود نہیں تھا۔ 1935 کے ایکٹ کے اندر تبدیلی کر کے، ترمیم کر کے پاکستان میں وہ فوری طور پر امپلیمنٹ کروایا گیا۔ جب پاکستان بنا تو فوری طور پر پاکستان کو ایک قانون کی ضرورت تھی۔ تو پاکستان کے اندر جو پہلا قانون لاگو ہوا تھا وہ 1956 کے اندر ہوا تھا، لیکن وہ قانون پاکستان میں زیادہ عرصے تک نہ چل سکا۔ صرف 2 سال کے بعد ہی جناب جنرل ایوب خان نے ملک کے اندر مارشل لا لگا دیا۔ تو جب مارشل لا لگتا ہے تو قانون کو ختم کر دیا جاتا ہے، آئین کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو 1956 کا جو 1956 کا پاکستان کے اندر پہلا آئین تھا وہ مارچ 1958 کے اندر ختم کر دیا تھا۔ اب پاکستان کو ایک نئے قانون کی ضرورت تھی۔ جب پاکستان کو ایک نئے قانون کی ضرورت تھی تو سب سے پہلے اس وقت کے صدر جنہوں نے پہلا قانون ختم کیا تھا، ایوب خان نے سابق چیف جسٹس شہاب الدین کی سرگردگی میں ایک 10 رکنی آئینی کمیٹی تشکیل کی۔ اب اس کمیٹی کا کام یہ تھا کہ اس نے قانون تیار کر کے ایوب خان کی خدمت میں پیش کرنا تھا۔ 1961 میں جناب چیف جسٹس شہاب الدین گوری نے وہ قانون تیار کر کے جنرل ایوب خان کے سامنے پیش کیا۔ اب ایوب خان نے کیا کیا، ایک 7 رکنی کمیٹی اور بنائی۔ اس 7 رکنی کمیٹی کو جو ہیڈ تھے وہ اس وقت کے وزیر خارجہ منظور قادر تھے۔ منظور قادر نے جب وہ ساری سفارشات کو پڑھا تو اس نے ان سب کو نظر انداز کر دیا اور اپنی مرضی کی سفارشات اندر داخل کر دی، اور وہ قانون 8 جون 1962 کو ایک صدارتی نظام کے ذریعے ملک میں لاگو کر دیا گیا۔ تو پاکستان میں اسٹوڈنٹس ابھی تک 3 قانون بنے ہیں، 1956 کا، 1962 کا اور 1973 کا، جو کہ آپ 10 کلاس میں پڑھیں گے۔ 1973 کا جو قانون ہے وہ ابھی تک پاکستان میں چل رہا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے اس کے کچھ کیس پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم لوگ تحریری آئین کی۔ تو اسٹوڈنٹس، تحریری آئین کا مطلب ہے کہ 1962 کا جو قانون تھا، جو آئین تھا، یہ لکھا ہوا تھا۔ لکھے ہونے سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے تمام ملکوں کے جو قانون ہوتے ہیں وہ لکھے ہوئے نہیں ہوتے۔ جیسے امریکہ لے لیتے ہیں یا برطانیہ لے لیتے ہیں، ان ملکوں کے قانون لکھے ہوئے نہیں ہوتے۔ ان کو جو چیز ٹھیک لگتی ہے وہ اسے امپلیمنٹ کروا دیتے ہیں، جو نہیں قانون ٹھیک لگتا ہے وہ اسے ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے اندر ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اور اگر کسی قانون میں تبدیلی کرنی ہے تو وہ قومی اسمبلی میں جا کر ہم لوگ اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو قانون تھا یہ 250 دفعات اور 5 ابواب پر مشتمل تھا۔ اب ابواب مطلب 5 حصے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے 5 حصے تھے۔ جیسے پہلے حصے میں ہم کہتے ہیں 50 دفعات تھی، دوسرے حصے میں 50 تھی، تیسرے میں 40 تھی، اسی طرح 5 حصوں کے اندر 250 دفعات کو تقسیم کیا گیا تھا۔ دوسرا جو پوائنٹ ہمارے پاس وہ ہے وفاقی آئین۔ تو وفاقی آئین کو شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ملک میں سب سے اوپر والے لیول کی گورنمنٹ ہوتی ہے جسے ہم لوگ سینٹرل گورنمنٹ بولتے ہیں، وفاقی گورنمنٹ بھی کہتے ہیں۔ اب جس کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے اس کی پورے ملک میں حکومت ہوتی ہے، کیونکہ وفاق کے نیچے صوبے آتے ہیں۔ تو یہ جو آئین تھا یہ وفاقی آئین ہوگا، یعنی کہ پورے کا پورے وفاق کے اوپر لگے گا، تو نیچے جو صوبے ہوں گے اس کے اوپر یہ آئین آٹومیٹیکلی امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ تو یہ ہم 1962 کی بات کر رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے 2 یونٹ تھے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ موجودہ حالات میں ہم لوگ دیکھیں تو پاکستان کا صرف 1 یونٹ باقی ہے، مغربی پاکستان، جو کہ موجودہ پاکستان ہے۔ مشرقی پاکستان جو تھا وہ 1971 میں پاکستان سے الگ ہو کر ایک نیا ملک بن گیا تھا، بنگلہ دیش۔
तो इसका मतलब है कि ये जो कानून था उस वक्त बांग्लादेश वाली हिस्से पर भी और जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं दोनों इलाकों पर लगता था। पॉइंट नंबर 3 हमारे पास सदारती हैं। तो सदारती आइन को अगर हम लोग आसान अल्फाज के अंदर बात करते हैं तो सारी की सारी जो पावर थी वो सदर के पास थी। स्टूडेंट, मौजूदा कानून जो 1973 है उसके मुताबिक ज़्यादा जो पावर होती है वो वज़ीर आज़म के पास है, लेकिन उस वक्त हुकूमत का सरबरा, मुल्क का सरबरा जो था वो सदर था। एक तरह से जितने भी वज़रा होते थे वो सारे के सारे सदर के सामने जवाबदेह होते थे। और इसके अलावा जितनी भी बड़ी तकर्रियाँ थी, मतलब बड़ी सीटें थी चीफ जस्टिस वगैरह की होगी, वो सारी की सारी सदर के हाथ में होती थी। इतनी ज़्यादा जो पावर थी वो सदर के पास थी। और ये हम लोग बात कर रहे हैं 1962 की। और उसके मुताबिक सदर का मुसलमान होना भी लाजम है, लेकिन मौजूदा कानून के मुताबिक सदर के साथ साथ वज़ीर आज़म का भी मुसलमान होना लाजम है। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं तो इस्तवार आइन। स्टूडेंट, इसका मतलब है इस्तवार आइन का कि अगर मुल्क के अंदर कोई कानून मौजूद है वो हमें नहीं पसंद, हम उस कानून के अंदर तब्दीली चाहते हैं या इसके अलावा कोई नया कानून हम मुल्क के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो फिर क्या तरीकाकार है? तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि कौमी असम्बली के 3 हिस्सों में से 2 हिस्से अगर किसी एक बात पर मुतफिक हो जाते हैं कि जी ये वाला कानून मुल्क में लागू होना चाहिए तो इम्प्लीमेंट करवा दिया जाएगा। लेकिन अगर 2 से लागू एग्री हो भी जाते हैं तो वो जो कानून होगा वो मुल्क में इम्प्लीमेंट फौरी नहीं करवाया जा सकता तब तक जब तक सदर जो है उसकी मंजूरी नहीं दे सकता। अगर सारी कौमी असम्बली भी एक साइड पे हो जाती है कि ये कानून मुल्क में ख़त्म किया जाए या इम्प्लीमेंट किया जाए, तो जब तक सदर की मंजूरी नहीं होती वो चीज़ नहीं हो सकती। ये हम बात कर रहे हैं 1962 की, लेकिन मौजूदा कानून के अंदर नंबर 5 है हमारे पास जागवानी करना। तब ये बात कर रहे हैं 1962 की। 1973 जो मौजूदा है ना मुल्क के अंदर उस वक्त उसके अंदर हमारे 2 ईवान हैं, एक ईवान बाला है, एक ईवान ज़िक्री है। ईवान बाला जो होता है वो सेनेट को बोलते हैं। सेनेट का काम ये होता है उसमें सदर को मुंतखब करना होता है। कोई भी बिल पास होना हो पहले कौमी असम्बली में जाता है फिर सेनेट के अंदर भी जाता है। तो 1962 के अंदर मुल्क के अंदर सिर्फ एक ईवान था और उस ईवान का नाम था कौमी असम्बली। कौमी असम्बली वो होती है जहाँ पर MLA होते हैं। आप देखते हो कि हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। तो कौमी असम्बली उस वक्त पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ एक ही अवान था जिसको इंतखाबी इदारा हर 5 साल के बाद मुंतखब करता था। और इस कौमी असम्बली के ज़िम्मे भी ये काम होता था कि इसने मुल्क के सदर का चुनाव करना। पॉइंट नंबर 6 है हमारे पास वाहद शहरियत। स्टूडेंट, वाहद शहरियत का मतलब ये है कि पाकिस्तान के 2 यूनिट थे, मशरकी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान। तो किसी बंदे को ये नहीं कहा जाएगा कि ये मशरकी पाकिस्तान के ये मगरबी पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड पर ये चीज़ें लिखी जाएगी, बल्कि दोनों यूनिटों के रहने वाले शहरियों को पाकिस्तानी सिर्फ कहा जाएगा, किसी को मशरकी या मगरबी बाकायदा तौर पर नहीं कहा जा सकता। पॉइंट नंबर 7 है बुनियादी हकूक। बुनियादी हकूक के अंदर ये होता है कि कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया जाएगा जो इंसान मुल्क में रहने वाले लोगों के हकूक के मुनाफी हो, उनसे बढ़कर हो। लोगों को मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी, जमहूरियत, मसावत। अब जमहूरियत क्या है? जमहूरियत ये होता है कि जैसे देखें जमहूरियत के अंदर अक्सरियत की बात को माना जाता है कि ये नहीं देखा जाता कि ये लोग ताकतवर ज़्यादा भी उनकी बात को माना जाए, बल्कि जमहूरियत होगी अक्सरियत जिस बात पर मुत्तफिक होंगे उस चीज़ को मुल्क में इम्प्लीमेंट करवाया जाए। इसके अलावा बराबरी होगी, मुल्क में रहने वाले तमाम जितने भी लोग होंगे सबको इक्वली राइट्स हासिल होंगे। 8वां हमारे पास इस्लामी दफात। तो स्टूडेंट, करारदाद मकासद का जो इफ्तिताहिया था उसको भी इस कानून के अंदर शामिल किया गया था। इस्लामी दफात के अंदर थी कि मुल्क के अंदर जो हुक्म होगा वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का होगा। जितने भी वजीर होंगे, प्राइम मिनिस्टर, सदर, ये सारे के सारे अल्लाह की दी मानत समझकर अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करें। और जब भी ये लोग कोई भी कानून बनाएंगे तो कानून बनाते हुए कुरान और सुन्नत के से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा जो मुल्क है वो नज़रिया इस्लाम पर बना था और हम लोग कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकते जो इस्लाम कुरान और सुन्नत से बाहर हो। पॉइंट नंबर 9 हमारे पास इस्लामी मशावरती कौंसिल। एक कमेटी बनाई गई इस्लामी मशावरती कौंसिल। अब इस कमेटी के ज़िम्मे ये काम था कि इसने गवर्नरों को, वज़ीर आला को और इसके अलावा सदर को मशवरे देने हैं, एक राय देनी है जब वो लोग कानून बना रहे होंगे। लेकिन इनकी बात सिर्फ एक राय तक महदूद होगी, फाइनल नहीं समझा जाएगा। फाइनल सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ सदर की बात को समझा जाएगा। ये सिर्फ एक राय तक महदूद हो। पॉइंट नंबर 10 हमारे पास कौमी ज़बान 1973 के मुताबिक, क्योंकि बांग्लादेश अलग हो चुका था, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं 1962 की, तो उस वक्त बांग्लादेश भी हमारे साथ था, जिसको मशरक़ी पाकिस्तान कहते थे। तो इस वजह से पाकिस्तान की दो कौमी ज़बानें थी, एक बंगाली थी और दूसरी उर्दू ज़बान थी। और पॉइंट नंबर 10 है हमारे पास बाला वास्ता जमहूरियत। ये इसके ध्यान से ये समझने वाला है, इंतहाई इदारे की बात होगी बार बार, तो वो क्या सिस्टम है स्टूडेंट। अभी आप लोग देखते हो कि जिस बंदे को हम लोग वोट देते हैं, अगर वो जीत जाता है तो वो कौमी असम्बली में जाकर हमारे इलाके को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लेकिन 1962 के मुताबिक ऐसा नहीं था। 1962 में हमने क्या करना था, हमने अपने गली मोहल्ले से किसी एक मेंबर को चुनना होता था। अब उस मेंबर के पास इख्तियार होता था कि आगे से वो किसी को वोट दे तो वो बंदा फिर जाता था कौमी असम्बली तक। हम बराह रास्त किसी को वोट नहीं थे दे सकते, लेकिन मौजूदा कानून के मुताबिक हम लोग डायरेक्ट उस बंदे को वोट करते हैं, अगर वो जीत जाता है तो वो कौमी असम्बली में जाता है। लेकिन 1962 के मुताबिक ऐसा नहीं था। हमने अपने गली मोहल्ले में किसी एक मेंबर को सिलेक्ट किया, नॉमिनेट किया। इस तरह की 80,000 टोटल की तादाद थी, 40,000 लोगों की तादाद थी मशरक़ी से, 40 मगरबी से। और इसके अलावा इस कानून के मुताबिक कौमी असम्बली में भी इक्वली तौर पर सीट्स दी गई थी। जितनी सीटें दी गई थी मशरक़ी पाकिस्तान को, उतनी सीटें दी गई थी मगरबी पाकिस्तान को। और कौमी असम्बली में जो सीटें ज़्यादा असर करता है स्टूडेंट, आपको पता है, वो मुल्क में वफाकी हुकूमत बनाने में कामयाब हो गया। इसका रिव्यू कर लेते हैं कि हम पढ़ते 1962 का आइन, कि 1962 को जो आइन था ये 8 जून 1962 को पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हुआ था। पहले इसे उस वक्त के साबिक़ चीफ जस्टिस शहाबुद्दीन ने की सरगर्मी में कमेटी बनाई थी। उन्होंने एक कानून तैयार किया और अयूब खान के सामने पेश किया। अयूब खान ने इसके 7 रुकनी कमेटी और तश्कील दी। अब उस 7 रुकनी कमेटी ने दोबारा से उस सारे कानून को डिस्कस किया और उसको अपने नज़रअंदाज करके अपनी तरफ से उसके अंदर तरमीम दाखिल करवा दी, सिफारिशात अंदर कर। इसके अलावा हम लोगों ने इसके पार्ट्स पढ़े थे। सबसे पहले तहरीरी आइन था। तहरीरी आइन के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये लिखा हुआ आइन होगा। बोला कि तमाम दुनिया के जो मुल्क हैं उनके अंदर लिखा हुआ आइन नहीं होता। जस्ट लाइक हमने अमेरिका की एग्जाम्पल दी थी या हमने बरतानिया की एग्जाम्पल दी थी, तो वहाँ के जो कानून होते हैं वो लिखे हुए नहीं होते, लेकिन हमारा कानून एक लिखा हुआ रिटर्न फॉर्म में था। वफाकी आइन की बात की थी कि ये आइन वफाक के ऊपर लागू होगा। अब ऑटोमेटिकली अगर वफाक पर लागू हो रहा है तो उसके नीचे जो सूबे हैं, जो ज़िले हैं, यूनियन कौंसिल है, सब के ऊपर ऑटोमेटिकली जो कानून है ये लागू होगा। सदारती आइन का मतलब ये सारी की सारी जो पावर होगी सदर के पास होगी, सदर का मुस्तक़िल लाज़िम है, और जितनी बड़ी वित्त कर रही है सीटें हैं वो सदर के पास होगी। चौथा है हमारे पास इस्तेमाल है। इस्तेमाल का मतलब ये था कि अगर आप इसमें तब्दीली चाहते हैं तो कौमी असम्बली की 2/3 अक्सरियत इसमें तब्दीली कर सकती है, लेकिन अगर वो मान भी जाती है तो जब तक सदर एग्री नहीं होता किसी भी सूरत उस कानून के अंदर तब्दीली नहीं की जा सकती या उसको मुल्क में लागू नहीं किया जा सकता। पॉइंट नंबर 5 है हमारे पास यहाँ पर या कानून करना। तो या कानून करना के अंदर बात की गई थी कि 73 के आइन के अंदर तो 2 ही वाहन होते हैं, लेकिन इस वाहन के अंदर हमारे पास इस आइन में सिर्फ एक वाहन होगा, उस वाहन का नाम होगा कौमी असम्बली, जिसे 5 साल के बाद इंतखाबी अदारा मुंतखब करता है मेंबरान को। बाद शहरियत मशरक़ी मगरबी पाकिस्तानी किसी को नहीं कहा जाएगा, हर एक को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी शहरी कहलाएगा। हर किसी को बुनियादी हकूक़ हासिल होंगे, जमहूरियत, मसावत सबको होगी। हर किसी को क्रिटिसाइज करने की आज़ादी हासिल होगी। हुकूमत को इनके खिलाफ कोई भी कानून बनाया नहीं जाएगा। इस्लामी दफात होंगी, बोले जब भी कोई कानून बनाया जाएगा कुरान और सुन्नत को सामने रखते हुए वो कानून बनाया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान नजरिया इस्लाम के ऊपर बना था। ना था हमारे पास पार्ट इस्लामी मुशावरती कौंसिल बनाएगी, जिसका काम था गवर्नर और सदर, जो गवर्नर और सदर होते हैं उनको एक राय देना कि आप लोग जो कानून बना रहे हो क्या वो इस्लामी तनाज़ुर के अंदर आते हैं या नहीं आते। लेकिन उनकी बात सिर्फ एक राय तक थी, असल अथॉरिटी जो थी वो सदर के पास थी। 10वां हमारे पास था कि उस वक्त बांग्लादेश हमसे अलग नहीं था, वह मशरक़ी पाकिस्तान, तो इस वजह पाकिस्तान की 2 कौमी ज़बानें थी, एक बंगाली थी और दूसरी उर्दू थी। और लास्ट बात है बाला वास्ता जमहूरियत। बाला वास्ता जमहूरियत के अंदर हम लोगों ने बात की कि अभी हम लोग जिस बंदे को वोट देते हैं अगर वो जीता तो डायरेक्ट MNA बन जाता है, लेकिन उस कानून के मुताबिक ऐसा नहीं था। हमने गली मोहल्ले की सतह पर किसी एक मेंबर को मुंतखब जो हमारा हुआ होता था वो आगे से किसी को वोट करता था तो वो फर्दर अगर वो जीता तो वो कौमी असम्बली में जाता था, यानी कि बराह रास्त जो इंतखाबात थे वो नहीं थे। स्टूडेंट ये हमारा आज का टॉपिक था। आपने मज़ीद 1962 का आइन जो आज हम लोगों ने पढ़ा, आपने
फर्दर देखने के अयूब खान की जो गवर्नमेंट थी वो कितने साल रही थी और उसने कौन कौन से इकदाम मज़ीद मुल्क के अंदर किए थे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं अली रज़ा मेरीलैंड हाई स्कूल से आपका उस्ताद मुतालिया पाकिस्तान का आपसे मुखातिब हूँ और आज का जो हमारा अनवान है CR फार्मूला। स्टूडेंट, टॉपिक को मज़ीद एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ा इसका बैकग्राउंड बता दूँ कि ये जुलाई 1944 की बात है कि गांधी ने कायदे-ए-आज़म को खत लिखा कि मैं आज आपसे मुलाकात करना चाह रहा हूँ, आप जब चाहे मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। मुझे मुसलमानों का और इस्लाम का दुश्मन ना समझिएगा, मैं ना सिर्फ आपका बल्कि पूरी इंसानियत का खादिम हूँ। जवाब में कायदे-ए-आज़म ने अगस्त के अंदर मुलाकात का जवाब दिया, लेकिन बाकायदा तौर पर जो मुलाकात थी वो सितंबर के अंदर हुई। जब कायदे-ए-आज़म की गांधी से मुलाकात हुई तो आगाज़ ही दो कौमी नज़रिए से हुआ। तो सबसे पहले गांधी ने दो कौमी नज़रिए को मानने से ही इनकार कर दिया। अब जब गांधी ने दो कौमी नज़रिए को मानने से इनकार कर दिया तो कायदे-ए-आज़म समझ गए थे कि ये एक साजिश है। बाद में दोनों रहनुमाओं के दरमियान खत के ज़रिए बातचीत चलती रही और गांधी ने कायदे-ए-आज़म को ये मशवरा दिया कि हम लोग ऐसा करते हैं, पहले अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल कर लेते हैं और उसके बाद पाकिस्तान का मसला हल कर लेंगे। लेकिन कायदे-ए-आज़म ने इसको जवाब में गांधी का उसको बेकारी करार दे दिया और कहा कि अगर अंग्रेज़ यहाँ से जाने से पहले ये मसला हल नहीं कर लेते तो पाकिस्तान कभी भी नहीं बन पाएगा। तो हम अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, CR फार्मूला। तो स्टूडेंट, जब गांधी ने अंग्रेज़ों के अलावा बहुत सी तहरीकें चलाई, जिनमें से आप कह सकते हैं भूख हड़ताल में उसने तहरीक चलाई, हिंदुस्तान छोड़ दो की तहरीक चलाई अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी के लिए। तो जब उसकी तहरीकों को सख्ती से कुचल दिया गया था तो अंग्रेज़ों ने गांधी को जेल में डाल दिया। अब गांधी जब जेल में चला गया तो उसे लग रहा था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो कमज़ोर पड़ रही है, इसलिए इसने मुस्लिम लीग को भी कमज़ोर करने के लिए एक चाल चली। इसने क्या किया कि इसने इंडियन कांग्रेस का एक रहनुमा था चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य, इसको जेल में बुलाया और इसे कहा कि वो तकसीम हिंद पर अपनी राय पेश करे। मतलब कि वो उससे कहना चाह रहा था कि तुम बताओ कि तुम्हारी क्या राय है अगर हिंदुस्तान की तकसीम कर दी जाए। चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य ने गांधी के साथ मिलकर 1944 के अंदर एक फार्मूला तैयार किया जिसे CR फार्मूले का नाम दिया गया और इसकी एब्रिविएशन ये है कि चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य के साथ मिलकर गांधी ने ये फार्मूला तैयार किया था। इस फार्मूले को तैयार करने का मकसद ये था कि मुस्लिम लीग को कमज़ोर किया जाए, क्योंकि गांधी तो अब मौजूद था जेल के अंदर, और अगर वो जेल के अंदर मौजूद था तो बाहर मुस्लिम लीग स्ट्रांग हो रही थी और उसे ये बात हजम नहीं हो रही थी। इसलिए उसने कहा कि इसे किसी तरीके मुस्लिम लीग को कमज़ोर करने किया जाए। तो जब उसने चक्रवर्ती के साथ मिलकर एक फार्मूला तैयार किया और वो फार्मूला जब कायदे-ए-आज़म की खिदमत में पेश किया गया तो उसके कुछ सबसे पहले बुनियादी निकात थे कि जमातों से मंजूरी के फार्मूले के अंदर जो निकात लिखे हैं, अब दोनों रहनुमाओं ने अपनी अपनी जमात से इसे मुतफ़िका तौर पर मंजूर करवाने। मतलब कि कायदे-ए-आज़म की ये जिम्मेदारी होगी कि वो जितने भी पॉइंट्स CR फार्मूले के अंदर लिखे हुए हैं इसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से मंजूर करवाएंगे, जबकि गांधी जो है उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस से उस CR फार्मूले के तमाम पॉइंट्स को मुतफ़िका तौर पर मंजूर करवाएंगे। दूसरा हमारे पास पॉइंट थी जंग-ए-अज़ीम 2। स्टूडेंट, हम लोग बात कर रहे हैं 1944 की। तो आप लोगों को पता है कि जो जंग-ए-अज़ीम सेकेंड वर्ल्ड वार है वो 1939 से 1945 तक वो जंग जो थी वो लड़ी गई थी, लेकिन हम लोग बात करें 1944 की। तो बात ये थी कि जंग-ए-अज़ीम 2 के बाद शुमाल मशरिक़ मगरिब के जितने भी अज़ला हैं उनके हदूद का तयन किया जाएगा और जहाँ पर भी मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है वहाँ पर जाकर उन लोगों से उनकी राय ली जाएगी कि आया वो एक अलग मुल्क के हक के अंदर हैं या नहीं। अगर तो वो अलग मुल्क के हक में हुए तो फिर इसका फैसला बाद में कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 था हमारे पास अलग ममलिकतों का क़याम, कि अगर तो अलग ममलिकतों का क़याम हो जाता है जैसे मैंने ऊपर बात की है, तो फिर क्या किया जाएगा कि उन लोगों से उनकी राय ली जाएगी, उन लोगों की
से राय ली जाने के बाद अलग ममलिकतें बना दी जाएंगी, और अगर वो लोग हिजरत करना चाह रहे हुए तो उनको जाने। स्टूडेंट पॉइंट नंबर 4 है यहाँ पर हमारा आज़ादी की हिमायत। तो इसके अंदर पॉइंट ये था कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो होगी वो आज़ादी की हिमायत करेगी और हर सतह के ऊपर, हर फॉर्म पर जाकर इंडियन नेशनल कांग्रेस का साथ देगी जब वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे होंगे आज़ादी के लिए। पॉइंट नंबर 5 है इस्तिस्लाब राय का फैसला। पॉइंट स्टूडेंट ये पॉइंट ये था कि इन केस आज़ादी हासिल हो जाती है और अलग-अलग ममलिकतों का क़याम का फैसला होता है कि भाई पाकिस्तान बना दिया जाएगा, एक इंडिया बना दिया जाएगा, तो उससे पहले लोगों से उनकी राय ली जाएगी। राय ली जाएगी इस्तिस्लाब राय मतलब कि इलेक्शन के ज़रिए। तो जब इलेक्शन के लिए राय ली जाएगी तो दोनों पार्टियों को, मुस्लिम लीग को भी और कांग्रेस को भी पूरी आज़ादी हासिल होगी कि वो इंतखाबी मुहिम चला सके। अब इंतखाबी मुहिम चलाने का मतलब ये है कि जस्ट लाइक आप लोग देखें कि जब इलेक्शन होते हैं तो कैसे जल्द से जुलूस करती हैं सारी पार्टियां जाके, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो अपनी पूरी इंतखाबी मुहिम चलाती है, कैंपेन चलाती है, लोगों को अपने नज़रिए के मुताबिक मुतफ़िक़ा करने की, राज़ी करने की कोशिश करती है। बाहम महादू पर दस्तखत, इसमें यह था कि इन केस अगर दोनों रियासतें अलग अलग हो जाती हैं तो तमाम रियासती अमूर पर बाहमी मुतफ़िक़ा तौर पर दस्तखत होंगे। पॉइंट नंबर 8 था हमारे पास खाक से दस्तबरदार। इसका आखिरी पॉइंट कुछ यूँ था कि जितने भी पॉइंट्स हम लोगों ने ऊपर बात की है सारे के सारों के ऊपर इम्प्लीमेंट सिर्फ उस सूरत में बदरामद होगा अगर हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ हुकूमत करने से दस्तबरदार हो जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, तो फिर ये सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर अमल दरामद होगा। लेकिन इसका मामला कुछ यूँ हुआ था कि जब कायद-ए-आज़म ये सारे पॉइंट्स पढ़े, उन्होंने अपनी पूरी जो उनकी पार्टी थी उनके लोगों को बुलाया, उनके सामने ये सारे के सारे पॉइंट्स पेश किए और तमाम पार्टीज़ के अरकान ने मुतफ़िक़ा तौर पर कायद-ए-आज़म के साथ CR फार्मूले को रिजेक्ट कर दिया था, मानने से इनकार कर दिया था। स्टूडेंट एक दफ़ा हम लोग इस तहरीक को ले लेते हैं, हमने पढ़ना था CR फार्मूला। तो CR फार्मूला से पहले मैंने आपको बताया कि गांधी ने कायद-ए-आज़म को ख़त लिखा था कि 1944 के अंदर वो कायद-ए-आज़म से मुलाकात चाहता है, और इनकी जो मुलाकात थी वो सितंबर की हुई थी, सितंबर के अंदर हुई थी, और मुलाकात का आगाज़ 2 कौमी नज़रिए से ही हुआ था। गांधी ने 2 कौमी नज़रिया मानने से इनकार कर दिया था और कायद-ए-आज़म को तजवीज़ पेश की थी कि पहले हम लोग अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल कर लेते हैं, बाद में पाकिस्तान का मसला हल कर लेंगे। लेकिन कायद-ए-आज़म से धोखा और मकारी करार दिया था और कहा था कि अगर अंग्रेज़ यहाँ पर पाकिस्तान बनाने से पहले चले गए तो बाद में कभी भी पाकिस्तान नहीं बन पाएगा। तो CR फार्मूला कुछ स्टार्ट इसका कुछ यूँ हुआ था कि कुछ तहरीकें चलाई थी गांधी ने आज़ादी की अंग्रेज़ों के खिलाफ। इसकी एक तहरीक थी हिंदुस्तान छोड़ो, तो वो मुकम्मल तौर पर जब रिजेक्ट हुई, सख्ती से कुचला गया, तो अंग्रेज़ों ने उसको जेल में डाल दिया। जब अंग्रेज़ों ने गांधी को जेल में डाल दिया तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बड़ी कमज़ोर पार्टी थी। अब इसने एक साजिश ये चली कि किसी तरह मुस्लिम लीग को भी कमज़ोर किया जाए। इस पर इसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहनुमा चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को बुलाया, जिसके एब्रीवेशन ये थी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। इससे तकसीम हिंद पर इसकी राय ली और दोनों ने मिलकर एक फार्मूला तैयार किया, CR फार्मूला, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य फार्मूला। ये बाद में भी कायद-ए-आज़म और गांधी के दरमियान खाते के जरिए मुलाकात इनकी चलती रही। अब ये सारा जितना CR फार्मूला तैयार करके कायद-ए-आज़म की खिदमत में पेश किया गया, जिससे कुछ पहलू निकात थे। जमातों से मंजूरी ये थी कि जितने भी इसके अंदर पॉइंट्स होंगे दोनों रहनुमा कायद-ए-आज़म और गांधी अपनी अपनी जमात से मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर करवाएंगे। कायद-ए-आज़म इंडियन नेशनल कांग्रेस से और गांधी जो थे वो करवाएंगे कायद-ए-आज़म ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से और गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस से। पॉइंट नंबर 2 था हमारे पास जंग-ए-अज़ीम 2 के जंग के बाद उन तमाम इलाकों में सरहदी इलाके शुमाल मशरिक़ और मगरिब का तयन किया जाएगा और तमाम पर देखा जाएगा कि अक्सरियत मुसलमानों की कहाँ पर है, और इन केस अगर तो अलग ममलिकतों में क़याम का फैसला होता है तो फिर अवाम की राय के मुताबिक उनको उस इलाके के साथ जोड़ दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर आज़ादी की हमायत थी कि मुस्लिम लीग भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का हर जगह पर साथ देगी और आज़ादी की हमायत करेगी। इसका सवाब राय का फैसला अगर होता है कि दोनों रियासतों का अलग अलग होने का, तो फिर दोनों को अपनी ताबी मुहिम चलाने की मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी। जैसे
الیکشن سے پہلے جو الیکشن پارٹیز ہوتی ہیں مختلف وہ جلسے جلوس وغیرہ کرتی ہیں. باہم معاہدہ کے اوپر دستخط یہ تھا کہ کوئی جب اگر دونوں ریاستیں الگ الگ ہو جاتی تو ریاستی امور پر باہمی طور پر دستخط کریں گے, دونوں کو ہر پوائنٹ ماننا پڑے گا. آبادی کا تبادلہ تھا تو آبادی کا تبادلہ سے یہ کہ اب دونوں علیحدہ مملکت بن گئی ہیں. اگر تو یہاں سے ہندوستان میں لوگ ہندو جانا چاہتے ہیں تو ان کو صرف رضاکارانہ طور پر آبادی کا تبادلہ ہوگا, یا وہاں سے مسلمان آتے ہیں کوئی بھی شرط نہیں رکھی جائے گی, کسی بھی قسم کی کوئی قتل و غارت اس پر نہیں ہوگی, یہ صرف رضاکارانہ طور پر آبادی کا تبادلہ ہوگا. اکثر دستبردار ہے کہ ان سارے پوائنٹس پر صرف اس صورت میں عمل درآمد ہوگا اگر انگریز جو ہیں اپنے پوائنٹ سے جو حکومت کر رہے ہیں برصغیر کے اوپر اس سے وہ دستبردار ہو جاتے ہیں. قائد اعظم نے اپنی پوری پارٹی کو بلایا, ان کے سامنے یہ سارے کے سارے پوائنٹس رکھے اور متفقہ طور پر اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور سی آر فارمولے کو ریجیکٹ کر دیا. اسٹوڈنٹ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. ہوپ سو یو انڈرسٹینڈ دیٹ. اور نیکسٹ آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے, آپ کے لیے ایک اسائنمنٹ ہے کہ ایسی کون کون سی تحریکیں کی تھی جو گاندھی نے چلائی تھی ہندوستان کی آزادی کے لیے, اور وہ کس طرح اور اس کے ناکام ہونے کی وجوہات تھی کیا. اس میں مزید آپ کو ایک چیز یہ بھی بتا دوں کہ قائد اعظم اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی جیل میں نہیں گئے. اس کی وجہ کچھ یہ تھی کہ وہ ہمیشہ اپنی بات کو دلائل سے منواتے تھے. ہوپ سو you enjoyed the lecture. Thank you.